CF 4 upon ये वाला S into ये H. वाला तो वो है मीडियन का मीडियन का L1 plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into H. Good, very good. So today we are going to start a new chapter, chapter 13. Are you all ready for that? Are you ready for Yes, that? sir. Chapter 13. Write down in your diary. No, please make a diary of that. Chapter 13. And see the screen. How many shapes you can see on the screen? बताओ. कौन-कौन सी shape है बताओ मुझे. Anyone? What is the first shape about? cuboid, Cuboid. Second shape? cone, Cone. Third shape? cylinder, And last shape? circle, Sphere. Sphere. It is not a circle, it is a sphere. Actually, sphere is denoted like this type of figure. So that is sphere. So a cone has a height. This is called h, and this is called radius. और ये जो height है, slant height, इसको क्या कहते हैं हम? L कहते हैं. Is that clear? और in a cylinder, this is called height. अच्छा, इसको हम right circular cylinder भी कहते हैं. And that is right circular cone. And this is radius. और बताओ sphere में क्या क्या रहता है? Only radius is there. Clear? क्यूबॉइड में तीन चीज रहती है. क्या क्या रहेगा बताओ? L, this is called breadth, and this is called height. These are called dimension of a cuboid. L, B, and H. Okay. I think you have studied this all in 9th class. पढ़ा है ना? Yes or no? Yes, sir. हाँ. तो what you have to do in your notebook, अपनी जो कॉपी का जो मिडिल पेज है उसको निकाल लीजिए आप. Please take out your middle notebook of your middle page of the notebook, and you just fold the page twice, so you'll get 8 columns. Please check it. Bhumika, what I said just now, tell me. सर उसको 2 बार फोल्ड करना है वो मिडिल पेज को. हाँ, तो 2 बार फोल्ड करने से कितने कॉलम बन जाएंगे बताओ मुझे? 8 कॉलम्स. एक तरफ 4 कॉलम रहा है, दूसरी तरफ 4 कॉलम, राइट? Isn't it? Yes, sir. So you also do in your notebook. Please do it fast. Sir, done. All have done? yes, sir. Can you open your video so that I can see what you have done? On your video, all of you, just to show me. Yes, Manasvi, on your video. Manasvi. Sir, 1 minute. Sir, 1 minute. हाँ, 8 columns. I think Bhumika, you have not done 8 columns. तुम देखो इसका मनस्वी आद्या का 8 column दिख रहा है. एक बार और फोल्ड करो भूमिका. हाँ देखो आद्या ने 8 column किया हुआ दिख रहा है. 4 one side, 4 one side. Got it? Sir, I will rejoin with another device. हाँ, please join it. Bhumika, what I said, is that clear to you? Yes, sir. Done. Now, in the first column you write shape. Heading रहेगा इसका shape. Second column you write figure. First column is shape, and the second column you write figure. F-I-G, figure. And here you write AR dot B. What is AR dot B? Tell me. Area of base. Then AR dot top. That is area of top. Then you write CSA, or we can say LSA, lateral surface area, or it can be used as curved surface area. Then you write TSA, total surface area. And then you write volume, VOL. And then you write any other in the last column. Adya, can you repeat what you have written total? Heading of the columns? Yes, yes, sir. So shape, figure, area of base, area of top, LSA, TSA, volume, and any other. So first shape is cuboid. So write here cuboid. Cuboid, what you have to do to make a figure,
make two rectangles. ठीक है, and don't make very big figure. The figure should be coming in 2 lines. Okay, 2 lines of the notebook page. See, I made 2 rectangles and I joined the corners, so I get a cuboid. Have you made the figure? Yes, sir. Yes, sir. When I say area of base means this area. So can anyone say what is the formula for area of base? L into B. Good. Write down here L into B. And what is the area of top? Anyone? L into B. It remains same, L into B only. LSA, lateral surface area. We'll use the curved surface area for cylinder and cone. And for cube and cuboid, we'll use the word LSA. So LSA means the 4 walls, area of the 4 walls. Anyone who can say area of 4 walls? It means the top and bottom is not included in that. Okay. So anyone who can say lateral surface 4 area? into L. 4 No. into Lateral surface area. अच्छा, lateral का मतलब ये है कि ये जो लेफ्ट वाला है उसका एरिया कितना होगा बताओ मुझे. This is B ना. This is L and this is H. तो जो लेफ्ट वाली दीवार है उसका एरिया कितना होगा कोई बताएगा? B into H. B into H. और राइट वाला भी B into H है, तो 2 into B into H हो गया 2BH. Yes. और बताओ ये सामने वाली दीवार का एरिया कितना है और पीछे वाले का कितना है कोई बताएगा? LH. 2LH. 2 into LH. है ना. तो what I am doing, I am taking 2 common and inside I am writing a what? L plus B, or we can say B plus L, isn't it? L plus B और H को मैंने पीछे से कॉमन निकाल दिया, तो ये बन गया फॉर्मूला 2 into L plus B into height. Got it? और ये जो 2 into L plus B इसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं, तो you can say perimeter into height, P into H. Over? Yes, sir. Now come to the formula of TSA. TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसमें 4 वॉल्स भी आ गया, टॉप और बॉटम भी आ गया, है ना. तो ये इन सबको ऐड कर दो, 2LB 2BH, तो 2 कॉमन निकल जाएगा. एंड व्हेन यू टेक 2 कॉमन, अंदर क्या बच गया बताओ? LB. एनीवन हु कैन से? LB plus LB plus BH plus LH. yes, very good. LB plus BH plus LH. तो क्या फर्क है दोनों फॉर्मूले में? मनस्वी बताओ क्या फर्क है दोनों फॉर्मूले में? TSA और LSA में क्या फर्क है मनस्वी? Yes, sir. दोनों फॉर्मूले में क्या फर्क है बताओ? TSA और LSA हैं? TSA और LSA में क्या फर्क है? यस भूमिका, यू से. सर LSA में सिर्फ वॉल्स का एरिया है और TSA में सारे सरफेसेस का एरिया है. वेरी गुड. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. वॉल्यूम का फॉर्मूला कौन बताएगा? सर कौन सा फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. L into B into H. यस वेरी गुड. एक्चुअली बेस इनटू हाइट होता है और बेस L into B होता है, तो L into B into H हो गया. सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम. चलो एनी अदर में हम डायगोनल की बात करते हैं. डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. मतलब वो जो डायमेंशन है उनके स्क्वायर का सम and take the root of that sum. That is called diagonal of the cuboid. I hope that is clear to all. Yes. Now the next formula is for cube. So close the line and then you write cube. CUB cube. For making cube, what you have to do? You have to make 2 square. So this is 1 square. This is another square. And now join the corners of the square. These corners are joined like this. और ये जो शेप है इसको हम क्यूब बोलेंगे. ऑल द फेसेस आर स्क्वायर और इसके साइड को हमने ए मान लिया. सो लेंथ भी ए है, इसका ब्रेड्थ भी ए है और इसका हाइट भी ए, सभी ए है. बन गया फिगर? Yes, sir. नाउ टेल मी व्हाट इज द
area of base, who will say? A square. A square. Good, a square. तो यहाँ भी लिख देंगे हम a square. जब what is the area of top? A square. वो भी a square होगा. एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एक वॉल का एरिया a स्क्वायर है, तो 4 वॉल्स का एरिया कितना होगा? 4A square. 4a स्क्वायर. फिर आता है TSA, टोटल सरफेस एरिया. एक वॉल का a स्क्वायर है तो 6 दीवार का कितना होगा? 6A square. 6a स्क्वायर. फिर आते हैं वॉल्यूम में. L इंटू बी इंटू एच का मतलब A इंटू ए कितना हुआ? A cube. a क्यूब. डायगोनल की बात करते हैं हम. डायगोनल में क्या होगा? सबको a मान लेते हैं. a स्क्वायर, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर का रूट होता है a रूट 3. इज दिस क्लियर? ठीक लिया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब यूनिट की बात करते हैं. एरिया जो है वो हमेशा सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर या मीटर व्हाटएवर. तो यहाँ पे लिखते हो सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में आएगा, और यहाँ पर भी एरिया आ रहा है, दैट इज आल्सो सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, हियर आल्सो सेंटीमीटर स्क्वायर. वॉल्यूम विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब. एंड एनी अदर में डायगोनल हमने लिखा, तो डायगोनल का यूनिट रहेगा सेंटीमीटर या मीटर व्हाटएवर. प्लीज राइट डाउन लाइक दिस. तो ये दो शेप हो गया. Yes, sir. Any doubt in these two shapes? No, sir. Can you all show me the work what you have done by opening the video on your video, all of you, and show me your work. Good. Manasvi, I can't see your work. Yeah, very good. And keep on revising the formulas again and again. Many times you have to revise the formula, then only it will be by heart. So now we'll come into the next shape. And the next shape is cylinder. Write down. The next shape is cylinder. And you know how to make cylinder? What is the formula, method of making cylinder? You make a oval shape like this. Actually, it's not oval, it is a circle. Okay? And with radius r, और इसके edges को ऐसे मैंने जोड़ दिया है sides को. तो this is h, height of the cylinder, और ये radius हो गया. और इसका बेस को देख के बताओ, what is the shape of the base? Anyone? Circular. Circle. तो area of base क्या होगा इसका? Pi R square. r square. और area of top क्या होगा? Pi r square. That is also pi r square. Now come to CSA, curved surface area. तो curved surface area कितना होगा इसका? That is equals to 2 pi RH. Pi RH. और आप लोग एनी अदर में आ जाओ, और एनी अदर में लिखिए सर्कमफ्रेंस, उसको हम शॉर्ट में CF बोलेंगे. सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई r. सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई r. तो 2 पाई r में अगर हमने h का मल्टीप्लाई कर दिया तो विल गेट CSA 2 पाई RH. नाउ कम टू TSA. TSA का मतलब होता है तीनों को ऐड कर दो, टॉप प्लस बॉटम प्लस CSA. So can you tell me when you add these three what you will get? Anyone? तीनों को ऐड करना है, टॉप बॉटम और CSA को, क्या मिलेगा? Anyone? 2 pi r ब्रैकेट में r plus h. कैसे आया बताओ, कैसे आया? 2 pi r square plus 2 pi r h होगा, तो 2 हाँ, pi ये हो गया 2 पाई r स्क्वायर शुरू के दो, टॉप और बॉटम, प्लस CSA हो गया 2 पाई RH. व्हाट इज कॉमन इन बोथ? 2 pi 2 पाई r. तो हमने 2 पाई r को कॉमन निकाल लिया. तो इनसाइड विल गेट r प्लस h. ये आपको फॉर्मूला याद रखना है टोटल सरफेस एरिया का. चलिए अब बात करते हैं वॉल्यूम का. बेस इंटू हाइट होता है. वॉल्यूम का क्या हो गया फॉर्मूला? बेस इंटू हाइट. बेस कितना है? pi r square h. पाई r स्क्वायर h. और ये हो गया आपका सिलेंडर पूरा. क्लोज द कॉलम. क्लोज हो गया? Yes. Yes, sir. Yes, Now sir. the next shape is cone. Write down cone. तो कोन में क्या होगा? नीचे से एक सर्कल बनता है,
So I'm just making oval shape like this, and it has some height, some radius and one slant height. ठीक है, इसको हम बोलेंगे L, दिस इज हाइट H और ये हो गया रेडियस R. चलो बताओ इसका एरिया ऑफ बेस क्या आएगा भूमिका? pi r square. एरिया ऑफ बेस आएगा पाई आर स्क्वायर, जस्ट लाइक सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ टॉप क्या आएगा आद्या? है ही नहीं तो टॉप नहीं है, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ टॉप. नाउ कम टू CSA. CSA का फॉर्मूला होता है इसका पाई आर एल, pi r l. और अगर आपने ये दोनों को प्लस कर दिया तो TSA बन जाएगा. बताओ TSA का क्या हो गया फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर, pi r square plus pi r l. तो हाँ, pi r ब्रैकेट में r plus l. पाई आर बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया? r plus l. L. फिर आता है वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है सिलेंडर का 1/3 होता है, तो सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच है, pi r square h by 3. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. रिटर्न. Yes, sir. नाउ कैन यू L सी क्या था? L मतलब स्लैंट हाइट. ये देखो डायग्राम में दिख रहा है L. Yes sir, yes. ये अच्छा, यहाँ पे आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है ना, राइट ट्रायंगल. Yes उस sir. राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज L हो गया, तो पाइथागोरस का क्या हो जाएगा बताओ? L स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस, R square plus H square. हाँ, तो ये हो गया एक और फॉर्मूला कोन का, L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. ठीक है? Yes, sir. अच्छा बताओ यहाँ तक कितने फॉर्मूला हो गए? कितने फॉर्मूला हो गए? 4 शेप हो गए ना टोटल. Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट, ये तो ये सब Yes, हमने, sir. ये सब फॉर्मूला हम 9 में पढ़े हुए. एक नया फॉर्मूला आ रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ कोन. राइट डाउन फर्स्ट टर्म, FRUSTUM. सुना है क्या फर्स्ट टर्म? यस. Yes, sir. Sir, वो एक कोन में से कोन काट देते हैं ना ऊपर हाँ, से. फर्स्ट टर्म ऑफ कोन कहते हैं इसको. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये समझो कोन था, इस कोन को मैंने ऊपर से कट कर दिया. तो कोन को जब हम कट करते हैं ना, तो ये वाला शेप ऑप्टेन होता है जो नीचे बना रहा हूँ. देखो ये, तो ये जो शेप जैसे मैंने बनाया है, प्लीज मेक दिस शेप, एंड दिस इज द स्लैंट हाइट ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द कोन, एंड दिस इज द स्ट्रेट हाइट, दैट इज कॉल्ड H. तो ये कहलाएगा L, ये कहलाएगा H, एंड देयर आर 2 रेडियस. एक ये वाला बड़ा रेडियस है, तो दैट इज कैपिटल R, और ये छोटा रेडियस है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल r. ये कैपिटल R है, ये छोटा r, और HL. बन गया डायग्राम सबका. Yes, sir. अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ बेस की. अभी अच्छा, कैन यू टेल मी वन एग्जांपल ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन? एनी एग्जांपल ऑफ फ्रस्टम ऑफ Sir, कोन? bucket. यस, Bucket. वेरी गुड. बकेट. और क्या होता है? एक एग्जांपल बताओ बकेट के अलावा. वही पॉपकॉर्न वाला कप में. Beach hat. हाँ, सो ग्लास, पानी पीने का जो ग्लास रहता है, कुछ ग्लास सिलेंडर के शेप के होते हैं और कुछ ग्लास फ्रस्टम के शेप में भी होते हैं. देखा आपने? Yes, sir. तो अगर मैंने फ्रस्टम ऑफ कोन इसको कहा है, तो इसका बड़ा रेडियस नीचे है, तो इसका एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? पाई व्हाट? बिग R स्क्वायर. Pi capital R square. और एरिया ऑफ टॉप क्या आएगा इसका? Pi small r square. अच्छा बताओ, इस शेप का आपने कैप देखा है कि ऐसा वाला कैप भी तो आता है ना, ऐसा वाला देखा है आपने? Yes sir. हाँ. अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा वाला कैप बनाना है, तो उस कैप में कितना कपड़ा लगेगा, तो क्या करेंगे हम बताओ? LS. नो, LSA वाला वर्ड जो है सिर्फ कोन और क्यूबॉइड के लिए होगा, इसके हम CSA बोलेंगे. राइट? Yes, तो sir. CSA प्लस टॉप, ऊपर से टोपी खुला, थोड़ी ऊपर से बंद है ना, टोपी यहाँ से बंद है ना. CSA plus top या तो CSA TSA minus base. या तो माइनस से बेटर है प्लस करना. राइट? तो इसका जो LSA है, इसका फॉर्मूला होता है, प्लीज राइट डाउन, पाई ब्रैकेट में बड़ा R
प्लस छोटा r इंटू l। ठीक है? Yes, sir. अच्छा, जैसे अपने ऊपर पाइथागोरस में लिखा है एल का फॉर्मूला, वैसे ही यहाँ भी फॉर्मूला होता है एल का, तो वो भी लिख लो पहले। एनी अदर में लिखो एल स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों आर का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर, दैट मीन्स आर माइनस आर होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर माइनस आर होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, फर्स्ट टर्म ऑफ कोन में तो कितने फॉर्मूला बच गए हमारे? TSA वॉल्यूम। टीएसए और वॉल्यूम, है yes ना? sir, volume. तो टीएसए में हम कोई फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। टीएसए कब बनेगा? जब उसका टॉप और बॉटम हो और ये हो। तो यहाँ लिख दो टीएसए में एरिया ऑफ टॉप प्लस बेस, हाँ प्लस क्या, टॉप प्लस बेस प्लस TSA। सीएसए। Yes sir. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड द टीएसए, तो आप क्या करेंगे? पहले टॉप निकालेंगे, बेस निकालेंगे और सीएसए निकालेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे। इज दैट क्लियर? इसका फॉर्मूला नहीं होता है? आप चाहो तो बना सकते हो फॉर्मूला। टॉप का क्या हो गया? Yes. पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस पाई छोटा आर स्क्वायर प्लस पाई, ये करके बना लो अपना फॉर्मूला। ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम में ऊपर 1/3 है, कोन में यहाँ भी 1/3 आएगा, वहां पर पाई है, यहाँ भी पाई आएगा। हाँ, अब यहां पर क्या करना है? दोनों आर के स्क्वायर का सम निकालना है। आर स्क्वायर प्लस अगेन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द आर, मतलब बड़ा आर इंटू छोटा आर इंटू एच। मनस्वी, कैन यू रिपीट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म? Yes sir. 1/3 pi ब्रैकेट में बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस आर बड़ा आर इंटू छोटा आर ब्रैकेट क्लोज इंटू एच। गुड। अब इसको मिला के कितने शेप हो गए बताओ? 5। 5. 5 शेप्स हो गए। चलो कुछ और शेप्स करते हैं हम। तो प्लीज राइट डाउन द नेक्स्ट शेप। इसमें जगह है कि नहीं जगह? पेज में जगह है क्या? तो मैं पीछे लिख रही हूँ। हाँ, अगर पेज आपका फिल हो गया है तो यू कैन राइट इन द बैक साइड दैट आई वांट टू से। ठीक है? और एल्स यू कैन कंटिन्यू दैट पेज ओनली। तो अगला शेप लिखिए स्फीयर। स्फीयर कैसे बनाते हैं बताओ? क्या करना पड़ेगा स्फीयर बनाने के लिए? हैं? हाँ बट सर्कल बना के बीच में वेव। हाँ, पहले लिखो शेप में स्फीयर, और एक्चुअली वी हैव टू मेक अ सर्कल ओनली, बट सर्कल में अंदर में ऐसे लिख दो एक एस का साइन, सो दैट इट्स अ 3D शेप। अच्छा बताओ, इसका कोई बेस होता है क्या? नो सर। नो, सर इसका टॉप भी नहीं होता। ठीक है? और इसका सीएसए टीएसए दोनों सेम रहता है। इसको हम सीएसए ना बोल के हम सरफेस एरिया बोलेंगे, और इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका टीएसए भी वही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? यस सर। और एनी अदर में लिखिए हाइट। अगर एक स्फीयर रखा है तो बताओ स्फीयर की हाइट कितनी होगी भूमिका? डायमीटर मतलब 2r। 2r। गुड। तो ये हो गया आपका स्फीयर। यहाँ पे पूरा हो गया स्फीयर। यस सर। अगला शेप लिखिए हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर क्या होता है ये मनस्वी? सर हाफ स्फीयर। या जैसे एक लेमन है, लेमन को मैंने कट कर दिया तो आई विल गेट अ हेमीस्फीयर। इसका बेस कितना हुआ आद्या? हेमीस्फीयर का बेस कितना होगा? सर 2r। इसका बेस देखो ना यार, बेस का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। यस, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ टॉप क्या होगा कोई बताएगा?
सर टॉप ही नहीं है। टॉप नहीं है इसका, क्यों नहीं है? सर ऊपर राउंड से शेप आ रहा है ना। गुड। चलिए और बताइए, इसका CSA कितना होगा? कर्व सरफेस एरिया पूरे स्फीयर का कितना होता है? पूरे स्फीयर का कर्व सरफेस कितना होता है? सर हाफ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो तो 2 उसका पाई आधा कर आर दो। स्क्वायर हो आधा जाएगा। करेंगे कितना आएगा? 2 पाई 2 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। और इसका TSA कितना होगा? दोनों को ऐड कर दो, एरिया ऑफ बेस और CSA दोनों को ऐड करो, क्या आएगा बताओ? 3 पाई 3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, भूमिका? इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? हाँ मनस्वी तुम बताओ, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो हाफ कर देंगे। हाफ हाफ करने कर देंगे। हाफ करने से क्या आएगा? वो 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा ना, यस सर। तो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब। और अगर एक हेमिस्फीयर रखा है तो उसकी हाइट कितनी होगी? हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, हाइट किसकी इक्वल होगा? रेडियस। हाँ तो लिखो H इक्वल्स टू R। इज दिस क्लियर? यस और नो? Yes, sir. चलिए अब बात करते हैं हम होलो सिलेंडर। राइट डाउन होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है? सिलेंडर विच हैज सम थिकनेस। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे डबल सिलेंडर बनाना पड़ेगा और इसी को हम होलो सिलेंडर कहते हैं। इट हैज सम थिकनेस। हाइट इसकी h है और इसके 2 रेडियस है, एक बड़ा रेडियस है बड़ा R और एक छोटा रेडियस है ये स्मॉल r, और ये इसका थिकनेस है ये। राइट, तो इसका वजन निकालने के लिए हम क्या करें? एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए क्या करेंगे? पाई बिग R स्क्वायर बिग आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ, ये आपने एरिया ऑफ रिंग पढ़ा होगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, तो वही वाला फॉर्मूला ये। और इसका एरिया ऑफ टॉप भी वही रहेगा। क्या रहेगा इसका एरिया ऑफ टॉप बताओ? पाई ब्रैकेट में बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब बात करते हैं हम इसके CSA की। इसके दो सरफेस एरिया, एक आउटर एक इनर। तो आउटर को हम लिख देंगे CSA 1। अब देखो सिलेंडर का CSA क्या लिखा आपने? सिलेंडर का CSA देखो 2 पाई आर एच। हाँ, तो 2 पाई बिग R H। अब CSA 2 क्या है बताओ? CSA 2 मतलब अंदर वाला CSA 2 पाई स्मॉल आर एच। हाँ 2 पाई स्मॉल R H। अब बात करते हैं हम TSA की। जैसे हमने फर्स्ट टर्म में लिखा था वैसे यहाँ लिख देंगे। TSA में क्या आएगा? CSA 1 बोलते जाओ, कौन बोलेगा? CSA 1 प्लस CSA 2 प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। 2 इंटू बेस कर सकते हैं क्या हम? यस सर। क्यों 2 इंटू बेस क्यों किया हमने? तो ऊपर नीचे का सेम है। हाँ, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस आया था हमारा पाई इंटू R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू H। क्लियर? रिटर्न। यस सर। अब बात करते हैं एनी इधर की। तो एनी इधर में लिखिए सरकमफ्रेंस 1। सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई बड़ा R एंड सरकमफ्रेंस 2 that is 2 pi smaller। और नोटेड? Yes, sir. Done. अच्छा, अपने को पता कैसे चलेगा कि कब हमें होलो सिलेंडर का लगाना है फॉर्मूला, कब हमें नॉर्मल सिलेंडर का लगाना है? एनीवन? हमें पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन में तो दिया होगा। हाँ, क्वेश्चन में दिया रहेगा।
कि भैया ये होलो सिलेंडर है, इसका एक्सटर्नल रेडियस इंटरनल रेडियस जो भी दिया रहेगा। अच्छा एक और चीज में पूछना था, अगर हमें थिकनेस फाइंड करना है तो थिकनेस का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? थिकनेस, big R minus small r. हाँ तो लिखो यहाँ पे थिकनेस THICK, थिकनेस इज इक्वल्स टू बिग R। कभी कभी क्वेश्चन में थिकनेस पूछ देता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, एनी अदर में लिख दियो। लिख लिया? Yes, sir. चलिए अब हम बात करते हैं होलोस्फीयर की। राइट डाउन नेक्स्ट फॉर्मूला होलोस्फीयर, और मैं इसी में लिख रहा हूं, आपको अलग सा लिखना नीचे। होलोस्फीयर लिखो, होलो। तो होलोस्फीयर और नॉर्मल स्फीयर में क्या फर्क है बताओ मुझे, कोई बताएगा? तो उसमें बेस नहीं। नहीं, उसमें दो रेडियस, होलो सिलेंडर स्फीयर का मतलब स्फीयर के अंदर एक और स्फीयर है, जैसे ये दिख रहा है। हाँ, अच्छा, हाँ, है ना? yes, sir. तो ये हो गया, इसका बेस तो होगा नहीं, टॉप भी नहीं होगा। सरफेस एरिया इसके दो होंगे, ऐसे 1 और एक ऐसे 2 होगा। राइट, तो ऐसे 1 में लिखिए 4 पाई बिग R स्क्वायर, और ऐसे 2 में लिखिए आप व्हाट, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। और TSA में क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो यहां लिख दो CSA 1 सरफेस एरिया 1 प्लस सरफेस एरिया 2, और वॉल्यूम में क्या करना है आपको, इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, 4/3 पाई and in bracket you write down R cube, बड़ा कैपिटल R माइनस स्मॉल r क्यूब। डन? Yes, sir. और यहां पे लिख दो फॉर्मूला वही थिकनेस वाला, अभी हम जो लिखे थे ना, थिकनेस का क्या हो गया फॉर्मूला बताओ? Big R minus small r. हाँ, I hope that is clear to all. अब Yes, sir. एक और लिख लो होलो हेमिस्फीयर, यहाँ लिखो होलो हेमिस्फीयर, HOLLOW, होलो हेमिस्फीयर। तो होलो हेमिस्फीयर और नॉर्मल स्फीयर में फर्क है कि यहाँ पर क्या होता है, हेमिस्फीयर के अंदर एक और हेमिस्फीयर आ गया इस टाइप से, है ना? मतलब यू कैन से दैट देयर इज अ बॉल ऑफ सब थिकनेस। ठीक है, ये उसकी थिकनेस हो गई। तो इसका एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला ये रहेगा जो हमने यहाँ लिखा था, इसमें जो सिलेंडर में लिखा था, क्या होगा बताओ भूमिका? एरिया ऑफ बेस Pi r square. है, होलो सिलेंडर में जो लिखा है वही देखो ना, ये वाला। Sorry, pi brackets में r square minus यस, big R square minus small r square. एरिया ऑफ टॉप क्या आएगा इसका? सेम Same. तो top है. सेम रहेगा ना, पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, और इसके सरफेस एरिया दो रहेंगे, एक CSA 1 रहेगा और एक CSA 2 रहेगा। तो बताओ CSA 1 क्या रहेगा? एनीवन? CSA 1 देखो, हेमिस्फीयर का CSA क्या लिखा आप लोगों ने, देखो Pi जरा। r. हाँ, हेमिस्फीयर का CSA क्या है? 2 pi r square. हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई 2 pi big R square. R स्क्वायर, और CSA 2 क्या आएगा बताओ? 2 pi small r square. यस, 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब बात करते हैं हम TSA की। चलो, कौन बताएगा TSA का फॉर्मूला? CSA 1 plus CSA 2 plus base. गुड, तो यहाँ लिखते जाओ CSA 1 प्लस CSA 2 प्लस एरिया ऑफ बेस। नाउ कम टू वॉल्यूम। वॉल्यूम में जैसे ऊपर का होलो स्फीयर का था 4/3 पाई, तो उसका हाफ कर दिया, कितना हो गया? 2/3 पाई इन ब्रैकेट व्हाट, R क्यूब माइनस R cube minus small r cube.
और यहाँ भी लिखो फिर से थिकनेस का फॉर्मूला, T इक्वल्स टू व्हाट, R माइनस R. big R minus small r. Is this clear? Yes, sir. तो ये हो गया आपका पूरे 3D शेप्स. टोटल शेप कितने बताओ भूमिका, बताओ जोड़ के. 10. टोटल 10 शेप्स है. यस. Yes, sir. अच्छा, अब ये जो शेप अभी हमने पढ़ा है बेसिकली ये क्लास 9th का है ना. अभी 10th की पढ़ाई हमने शुरू नहीं की. 10th में खाली एक कौन एक नया चीज है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट 10th का सिलेबस और 9th के सिलेबस में फर्क किस चीज का है, राइट? सो हियर वी हैव टू यूज मल्टीपल शेप्स. यू नो व्हाट इज मल्टीपल शेप्स? यस, 2-3 शेप्स को ऐड करके न्यू शेप हाँ, बनाना. करेक्ट. जैसे देखो यहाँ पर ये फिगर दिख रहा है आपको. तो इस फिगर में 13.4 में कौन से दो शेप ऐड हुए बताओ मुझे. Sir, cylinder and hemisphere. हाँ, एक सिलेंडर है और दो हेमिस्फीयर है. इसको हमने कंबाइन कर दिया तो ये शेप बन गया हमें. तो हमें इस टाइप की शेप को स्टडी करना है. लेकिन बेसिक वही है जो 9 में पढ़ा था. तो नाउ वी गिव हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. लिख लिया? सर एक और पेज निकाल लें. हाँ, दूसरे पेज में लिखना है, ये वाला पेज में नहीं. नेक्स्ट पेज में लिखिए आप कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. प्लीज राइट डाउन फास्ट. लिख लिया? Yes, sir. अब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में आपको क्या करना है, 4 कॉलम खींचना है. प्लीज मेक 4 कॉलम्स. तो पहले में लिखिए आप शेप, और दूसरे में लिखो फिगर. नो, फिगर नहीं, यहाँ पे शेप का कुछ नाम ही रहेगा. हम शेप एंड फिगर दोनों लिखेंगे वहीं पर. यहाँ पर H लिख दो, टोटल हाइट. यहाँ पे लिखो वॉल्यूम, और यहाँ लिखिए TS से. रिटर्न. कितने शेप्स होंगे इसमें? है, कितने शेप्स होंगे इसमें? तुम देखते जाओ बस. ठीक है. तो पहला शेप हम बना रहे हैं. इसमें क्या है कि बीच में सिलेंडर है. ये सिलेंडर हो गया, और नीचे में एक हेमिस्फीयर आ रहा है, ऊपर में एक कोन आ रहा है. दिख रहा है? Yes, sir. तो टोटल हाउ मेनी शेप्स आर देयर? 3. 3. अच्छा बताओ, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना होता है, हाइट कितना होता है? R होता है ना? Yes, sir. अच्छा, तीनों का रेडियस सेम है. यहाँ पे तीनों में R लिखते जाओ. इसकी जो टोटल हाइट होगी H, वो कितना होगा? सपोज ये जो कोन है, कोन की हाइट H1 है और सिलेंडर की हाइट H2 है, और ये वाली हाइट जो है वो R है. मतलब टोटल हाइट कितना होगा, कौन बताएगा? H1 plus H2 plus R. H1 plus H2 plus R. टोटल वॉल्यूम कितना होगा इसका, कोई बताएगा? V1 plus V2 plus V3. Now tell me what is V1, what is V2 and what is V3? Anyone? Volume of V1 is volume of cone, V2 is volume of cylinder, V3 is volume of sphere. Hemisphere. Hemisphere, correct. इसका TSA निकालना है. TSA कैसे निकालेंगे? That is equals to curved surface area of cone, CSA1, curved surface area of cylinder, that is CSA2, and curved surface area of hemisphere, that is CSA3. और तीनों को ऐड करने से बन गया TSA. Noted? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये बताओ, अगर ऊपर भी हेमिस्फीयर होता तो क्या फॉर्मूला बन जाता, कोई बताएगा? टोटल हाइट का. अगर ऊपर भी हेमिस्फीयर है, नीचे भी हेमिस्फीयर है, देन इन दैट केस H plus 2R. गुड. H plus 2R, वेरी गुड. वॉल्यूम का फॉर्मूला? Volume of cylinder plus volume of sphere.
नो ऊपर नीचे दोनों, हाँ स्फीयर बोल दिया, मतलब 2 इंटू हेमिस्फीयर को आपने स्फीयर बोल दिया, राइट, गुड। Yes. सेम वे टीएसए का क्या हो जाएगा, CSA1 प्लस 2 इंटू CSA2, क्लियर। Yes, sir. अच्छा अब अगला जो शेप है देखो, थोड़ा सा डिफरेंट शेप बना रहा हूं मैं, एक क्यूब बना दो नीचे, और क्यूब के ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर को चिपका दिया। दिस इज क्यूब and the side of the cube is, you can say the side is A, ठीक है, और इसके ऊपर हमें हेमिस्फीयर को रख देना है, और ये देखो मैंने एक हेमिस्फीयर को रख दिया। कैन यू सी द फिगर, इज दैट क्लियर Yes, sir. मनस्वी? Yes, sir. इस फिगर का टोटल हाइट कितना, कोई बताएगा? इसकी हाइट कितनी है, हेमिस्फीयर का हाइट कितना है? हेमिस्फीयर A plus R. A प्लस आर। चलिए वॉल्यूम बताइए भूमिका, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप? भूमिका वॉल्यूम ऑफ दिस शेप क्या है? आद्या? V1 plus V2. What is V1 here? V1 is the volume of Volume of sphere. cube, नहीं, cube. और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। Hemisphere. फिर आता है TSA। चलो TSA कौन बताएगा? TSA ऑफ क्यूब, यहां लिखो TSA क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। Yes. हाँ So बताओ। फिर उसमें से हाँ उस सर्कल का एरिया माइनस करेंगे ना? तो लिखो माइनस पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये बताओ भूमिका, ये सर्कल के एरिया माइनस क्यों किया आपने? सो क्योंकि वो तो रखा ऊपर ऊपर वो रखा हुआ है ना हाँ हेमिस्फीयर, तो इसको फिर वो इसको जो हमने रखा है, तो ये वाला जो स्पेस है वो गायब हो गया, राइट, है ना? यस तो ये पेज को माइनस करेंगे, दैट इज माइनस पाई आर स्क्वायर। आई होप दिस ट्रू शेप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। Yes, sir. अभी आपने हेडिंग क्या डाला था, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड लिखा था ना? Yes, sir. अब कॉम्बिनेशन का उल्टा लिखो, रिमूवल ऑफ सॉलिड्स। हेडिंग डालो, रिमूवल ऑफ सॉलिड्स, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, रिमूवल ऑफ सॉलिड्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में बस यही दो है? हाँ यही दो है, ऐसे और भी है लेकिन हमने दो लिखा दिया, बाकी सब बन जाना चाहिए। अब लिखिए रिमूवल ऑफ सॉलिड्स, अगला जो टॉपिक है वो लिख लिया? यस सर। अच्छा रिमूवल ऑफ सॉलिड्स में आप क्या करेंगे, फिर से आप कॉलम खींचेंगे, चार नहीं खींचेंगे आप, 3 से काम हो जाएगा। 3 कॉलम खींचो, चलो 3 कॉलम, और फर्स्ट कॉलम में लिखिए शेप, फिर लिखिए वॉल्यूम, फिर TSA। लिख लिया? चलिए फर्स्ट शेप, तो फर्स्ट शेप में आपको ये शेप बनाना, जो दिख रहा है आपको ऊपर दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ? ये सिलेंडर दिख रहा है आपको? यस यस सर। सपोज दिस इज अ वुडन सिलेंडर, एंड इसका ना ये वाला पोर्शन को मैंने रिमूव कर दिया, ये वाला टुकड़ा, दैट इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर, और ऊपर से भी मैंने एक हेमिस्फीयर को रिमूव कर दिया। तो बताओ मुझे, जब मैंने 2 हेमिस्फीयर को रिमूव किया है तो टोटल वॉल्यूम लेफ्ट कितना होगा, कौन बताएगा? एनीवन? So volume of cylinder minus volume of sphere. गलत, 2v2 बोला करो ऐसे, है ना, या 2v1 माइनस 2v2, राइट? TSA कितना होगा इसका? एनीवन? Sir, CSA of cylinder plus 2 CSA of sphere. वो अच्छा बताओ, hemisphere. हमने प्लस क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया? So क्योंकि अब वो sphere वो उसके अंदर आ गया है ना, ऐड हुआ है। Yes, 2 times CSA of hemisphere. I am writing here HS. 2 times
curved surface area of hemisphere. Please write down. सर वॉल्यूम में V1 माइनस हमने 2V2 क्यों कर? Good. ये हाँ दोनों सर, सेम, हाँ सर समझ आ गया ये दोनों गया। सेम है ना, ये दोनों। हाँ, तो यहाँ पर याद रखना, जब रिमूवल होता है ना तो वॉल्यूम माइनस होता है, लेकिन टोटल सरफेस इसका ऐड होता है हमेशा। इज दैट क्लियर? यस। चलिए एक लास्ट और शेप कर लेते हैं, देन दिस चैप्टर इज ओवर। सो जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, एक काम करो, एक क्यूब बना दो, क्यूब। और इस क्यूब में आपको क्या करना है, एक कोन को कट करना है। सपोज अ कोनिकल कैविटी इज रिमूव्ड, एक कोन के शेप का जो टुकड़ा है वो मैंने रिमूव कर दिया इस क्यूब में से, ये कोनिकल कैविटी ऐसे बन रही है ना। और इसको मैं शेड कर रहा हूँ, शेड का मतलब है दिस पोर्शन इज रिमूव्ड। जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हम देखें ना, शेड का मतलब है दैट पोर्शन इज नॉट देयर, है ना, वैसे ही ये। तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा मनस्वी? वॉल्यूम ऑफ दिस शेप कितना हुआ? V1 माइनस V equals to V1 minus V2. हाँ करेक्ट। दूसरा शेप बताओ इसी तरह से, TSA क्या होगा? हाँ सर बोलिए। हेलो, TSA of हेलो, cube plus TSA of cone. कितना होगा TSA बताओ? TSA of cube plus TSA of cone. नो, So minus pi r एक मिनट रुक जाओ। है पहले हम लिखेंगे TSA ऑफ व्हाट? cube क्यूब। प्लस की माइनस, क्या करना है? प्लस करना है ना। plus प्लस CSA ऑफ व्हाट? CSA of cone कोन। हाँ अब यहाँ पे माइनस करना है, क्या माइनस करना है? pi r square. पाई आर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? Yes sir. मैं छोटे छोटे दो एग्जांपल लेता हूँ, इसी पर बेस्ड है। देन यू कैन ट्राई द फर्स्ट two exercise at least. Okay, so I'm just taking one example here. See, this is a book of NCERT and let's take the last question, 9th question. दिख रहा है आपको? Yes sir. Bhumika, can you read the 9th question? Yes, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder, as shown in figure 13.11. If the height of a cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. कैसे करेंगे हम बताओ, क्या करेंगे? सर जो हमने लिखा था उसी में से हम लोग TSA का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। हाँ तो एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। TSA इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला लिखा है, एक बार देखना जरा भूमिका। तो इसका CSA 1 plus CSA 2. हाँ CSA ऑफ अपन ले लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं ना। Yes, और फिर प्लस CSA of 2 CSA of hemisphere या तो CSA of. हाँ 2 into CSA ऑफ हेमिस्फीयर लिख दिया हमने, राइट? Yes sir. नाउ पुट द वैल्यू, व्हाट इज CSA ऑफ सिलेंडर? देखो डायरी देख के बताओ क्या है CSA ऑफ सिलेंडर, क्या होता है? 2 pi RH. 2 pi RH प्लस हाँ CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 by 3 होता है। क्या होता है CSA ऑफ हेमिस्फीयर? Two pi r square. 2 pi r स्क्वायर। कुछ कॉमन है क्या दोनों में? Yes sir. क्या कॉमन है? 2 pi r. 2. 2 pi r। अंदर क्या बच रहा है? H plus 2r square. 2r स्क्वायर है क्या? 2r. अब बताओ वैल्यू पुट करते हैं 2 की। अगर पाई के वैल्यू मेंशन नहीं है तो यू कैन टेक 22/7, अदरवाइज जो भी मेंशन है वो रखना है। r कितना है इस क्वेश्चन में? 3.5. तो यहाँ लिख दिया हमने 3.5 इंटू h कितना है इस क्वेश्चन का? 10. 10 प्लस 2r कितना होगा? 7. चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसका पॉइंट को मैंने रिमूव कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? 35 अपॉन क्या होगा? 10. 10 7 1s and 7 5. 5 5 1s 5 2s। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? So 2 और 2 cancel कर तो सकते क्या बच रहा है सामने? 22 into 17.
17 2 क्या होता है? 28, 28 क्या 30, 17 2 17 2 34, 34 कैरी 3 बच रहा है। 17 2 34 और 3 कितना हुआ? 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। square. बस ये आंसर है। इज दिस क्लियर टू ऑल? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, हमने 9th में ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था कि इस टाइप का क्वेश्चन किया था कि 9th में? नो। No, sir. हाँ, तो हमें 10th में ना इसी टाइप के क्वेश्चन को फोकस करना है इस साल। आई थिंक दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. अच्छा, अगर इसमें हमें पूछता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो कैसे करेंगे बताओ? सेम क्वेश्चन अगर वॉल्यूम निकालने के लिए आ गया तो? यस, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर देंगे। क्या होता है फॉर्मूला? V इक्वल्स टू V1 माइनस 2V2 हो जाएगा ना? Yes, sir. तो व्हाट इज द V1 हियर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट? Yes. क्या होता है फॉर्मूला? पाई r स्क्वायर h माइनस Pi r 2 इंटू square h हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2/3 pi r cube. 2/3 पाई r क्यूब। व्हाट इज कॉमन हियर? Pi r पाई r की पाई r स्क्वायर। देखो ठीक से, pi r square अंदर क्या बच रहा है? h minus 4/3 r 4/3 r. Is this clear? Yes, sir. Now this is 22/7। ठीक है, r स्क्वायर कितना होगा बताओ? r है 3.5, तो हमने लिख दिया 35/10। लिख सकते हैं ना? Into 35/10. और ब्रैकेट में बताओ क्या आएगा? h माइनस 10 minus 10 माइनस 4/3. पहले बताओ 4r कितना हुआ? 4/3 4r into पहले 35/10. बताओ 4r कितना हुआ? 4r। अच्छा ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं 4/3 14. 4/3 इंटू 35/10 लिख दिया हमने। लिख सकते हैं ना ऐसा? Yes, sir. अच्छा, इसके आगे आप बॉड मास के हिसाब से करेंगे और आंसर आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, बट डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब ओनली। ठीक है, Yes, sir. चलिए आज के लिए इतना काफी है। फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। हाँ, फ्रैक्शन में ही छोड़ना है बेटा इसको, डेसिमल में लग के टाइम पास नहीं करना है ना? हाँ, लेकिन बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं? ये कैलकुलेशन की गलती करते हैं, ये आपसे नहीं होना चाहिए। डोंट मेक एनी एरर इन द कैलकुलेशन एंड रिमेंबर द रूल ऑफ बॉड मास। यू नो व्हाट इज बॉड मास? यस Yes, sir. Yes, sir. Division, multiplication, अभी addition, अभी subtraction. ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। अभी इसके अंदर मुझे 2-3 चीजें और पढ़ानी है, तो लेकिन हाँ, जितना मैंने बता दिया इससे आपके शुरू के 2 एक्सरसाइज पूरे बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, बाय। Yes, sir. Thank you, sir.